ਹੈਲੋ एवरीवन ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਬੈਸਟ 200 MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ PPSC ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੇਪਰ PSSB ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ 200 MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ और इस सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ 4 ਪਾਰਟ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਵੀਕ ਹਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ PDFs ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੀ ऑफिशियल ਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PSPCL ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपना बेहतर स्कोर किया है। तो होप फॉर द बेस्ट कि तुसी पंजाब पटवारी वास्ते भी कुछ अच्छा कर सकते हो। जे चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਈ-ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕਸ ਇਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 107ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਫॉर द ईयर 2020 ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚਲਿਏ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਥੀਮ ਤੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, 107ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ, 2020 ਦਾ। ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 107ਵਾਂ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ISC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ ਏ ISC 2020 ਐਟ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ, मतलब कि एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस यानी UAS इन बेंगलुरु कर्नाटका। थीम ऑफ ISC फॉर द 2020 ये तुसी याद रखोगे, ठीक है। याद रखोगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप तुहानू समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की जानकारी पूछी गई है, विच इंडियन सिटी होस्ट द फर्स्ट फार्मर्स साइंस कांग्रेस रिसेंटली, ठीक है। ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਫਾਰਮਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਸੈਂਟਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, देखो फार्मर्स के नाल रिलेट करना तुसी कि किसान देखो गवर्नमेंट तो कोई सहायता नहीं मिल रही है, मदद नहीं मिल रही। किसान की कर रहे, खुद ही जुगाड़ू कर रहे, कुछ साइंस दी कर रहे हैं। चाहे उन्होंने बेसिकली की है लोग कहते कि किसान नाटक कर रहे हैं, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। याद दिलाना चाहांगा कि ड्यूरिंग ISC 2020 जो फर्स्ट टाइम फार्मर साइंस कांग्रेस वाज कंडक्टेड, यानी पहली बार कंडक्टेड किया गया और यह जो इनोग्रेट किया सीगा डॉक्टर, याद रखना कि त्रिलोचन महापात्रा, नोट कर लो यार, त्रिलोचन महापात्रा ने किया सीगा, मतलब कि सैक्रटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिन्होंने डेयर कहते हैं DARE, ठीक है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड साइंस याद रखना है बेसिकली, बल्कि साइंस नॉट एजुकेशन याद रखना है। और इतों के एंड डायरैक्टर जनरल है जोड़े DG है ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, जिन्होंने ISAR कहते हैं। मतलब सम ऑफ हाईलाइट्स आर
ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਬਲਿੰਗ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ 2022 ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 45 ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀ दैट होस्ट द 5th एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक। नेक्स्ट दे रखे कि ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस यानी APDRC फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है यार, और ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेटली पेपर 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, 5ਵਾਂ ਜੋ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਸਟ ਹੈ, 5ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰੋਸੋਫਿਲਾ ਰਿਸਰਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਟ टाइम इन इंडिया ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, तो ਇਹਦਾ जो सही आंसर होएगा पूना महाराष्ट्र होएगा। पूना महाराष्ट्र ਦਾ बिल्कुल सही आंसर है। और ये भी याद रखना है रिसेंट करंट की गल करते हैं तो महाराष्ट्र विखे तुहानूं पता है कि हुणे गवर्नमेंट ऑफ एक मतलब मैं कह सकदा कि अलायंस गवर्नमेंट बनी है। ठीक है, उत्थे हैगी है इंडियन एक तो हैगी है कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस के नाल उत्थे तृणमूल कांग्रेस की पार्टी बेसिकली कांग्रेस के नाल जो गठबंधन होया है खास तौर पर यानी शिवसेना की गवर्नमेंट हैगी है। और इन्हां ने मिल के एक की बनाया वा गवर्नमेंट बनाई है। और उद्धव ठाकरे इत्थों के कौन है, CM हैगे है। चलिए नैक्सट तुसी क्वेश्चन ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ आंसर ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਮੈਟਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਰੂਲ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨੋਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਰਾ ਹੈਪਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, बेसिकली कि एशिया पैसीफिक जो नैक्सट दे रखे कि आपां ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस है, ये पहली बार लगभग 6 तो लैके और 10 जनवरी के विखे यह पुना विखे महाराष्ट्र के हुई सी। ओवरऑल यदा 5वां एडिशन सीगा। ठीक है, ये तुसीं याद रखना, एग्जाम च तुहानूं पूछा जा सकता है। सो दैट चलिए अगला क्वेश्चन देख देने हैं। नैक्सट क्वेश्चन आपां की दे रखे है। क्वेश्चन नंबर नैक्सट है अज की सीरीज का चौथा क्वेश्चन है। हू चेयर्ड द सैकेंड एडिशन ऑफ द नैशनल GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉन्फ्रेंस फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिश्नर्स ऑफ स्टेट टैक्स एंड चीफ कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स दैट हैल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इन्होंने दसिया कि हू चेयर्ड मतलब किने चेयर किया इसनों। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होएगा अजय भूषण पांडे, बिल्कुल राइट आंसर है अजय भूषण पांडे, ऑप्शन नंबर 3 होएगा। ठीक है, अजय भूषण पांडे ने चेयर किया है। ये गल हैगी लगभग ऑलमोस्ट जनवरी दे विच है। सैकेंड एडिशन ऑफ नैशनल यानी नैशनल GST कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिश्नर्स ऑफ स्टेट टैक्स एंड चीफ कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स इन्हां दी हुई है। ठीक है, हेल्ड इन न्यू दिल्ली है। ठीक है, जितों तक गल करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा GST ते मीटिंग्स होंदी हैं वो बेसिकली हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होंदे ने उहदे च। ठीक है, नीति आयोग होंदा आ तो उन्हां द्वारा किया जाता है। पर फिलहाल इत्थे सीगा मैटर थोनों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बारे पूछा गया सीगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिश्नर्स ऑफ द स्टेट टैक्स है एंड द चीफ कमिश्नर्स ऑफ द सेंट्रल टैक्स इन्हां दी होई सीगी। तो इसनूं चेयर किने कीता सीगा, तो अजय भूषण पांडे, याद रखना है की नाम आएगा अजय भूषण पांडे। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर साढ़े तो नैक्सट 5वें क्वेश्चन च की पूछा जा रहा वा, वट इज़ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP है ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 1920 पर द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO। तो यदा सही बिल्कुल आंसर की होएगा, तो याद रखना है यदा 5% होएगा, 5% बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों याद रखना है कि NSO की फुल फॉर्म की है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस होएगा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक प्रोग्राम। जो मैं कहांगा कि इंप्लीमेंटेशन है रिलीज किया सी फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ द नैशनल इनकम ऑफ द बोथ कंटेंट 2011-12 किया गया सीगा। सो दैट गल इत्थों आ रही है फिजिकल ईयर यानी 2019 ਅਤੇ 20 ਦੀ GDP ग्रोथ है। तो बेसिकली की है कि यदि 6.8% अनुमानित सी पिछले साल, लेकिन इतकी साल की लगभग कितनी रखी गई है, 5% रखी गई है। आई थिंक थोनों ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है 6वां, हु वॉन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन ऑफ द क्रोशिया ऑन जनवरी 6, 2020।
दोस्तों याद रखना है, इस बेसिकली बहुत ही सिंपल जे क्वेश्चन जो थोनों बहुत ज़्यादा डिटेल्स पूछी जा सकती है। चलिए ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं कि हु वॉन द प्रेजिडेंशियल इलैक्शन ऑफ क्रोएशिया ऑन जनवरी 6 2020। ठीक है, तो इन्हों का नाम की आएगा, इन्हों का नाम है जोरन। ठीक है, जोरन मिलानोविक, याद रखना है जोरन मिलानोविक। देखो क्रोएशिया की गल है ना, जितों तक इनू आपां निमोनिक्स बना के याद करांगे, तो याद रखो तुसी जोरन मिलन। ठीक है, इसनू बेसिकली मिलन रख लो याद कि ठीक है, मिलनोविक तुहानू अगर नहीं याद आ रहा तो क्रोएशिया के नवे प्रेजिडेंट कौन ने, तो जोरन मिलोविक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्हों की उम्र 53 यानी 53 साल जिन्हों की एज है, ये भी तुहानू पूछा जा सकता है। प्रेजिडेंशियल इलैक्शन इन्होंने जितया है, और यह लैफ्टिस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ये भी तुसीं तुहाडे तो एग्जाम च पूछा जा सकता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखना है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां दे के रखे, नेम द सैटेलाइट दैट इज सैटअप ऑफ लॉन्च बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है, उस सैटेलाइट का नाम दसना है जिसनों हाल ही के इसरो द्वारा की किया गया वा, लॉन्च किया गया है। एंड कम्युनिकेशन विद द इंडियाज फस्ट मैंड स्पेस मिशन यानी गगनयान। ठीक है, गगनयान 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ बल्कि इसका मिशन रखा गया कि 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ साडे ह्यूमन वास्ते जो यात्रा होएगी गगनयान किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पूर्ण तौर पर उम्मीद करते हैं कि यह सही समय पर इदा पॉसीबल हो जाए, तो दुनिया का महान देश भारत होर भी ज़्यादा बनेगा। दोस्तों इसका सही आंसर की है, बेसिकली इतने साढ़े तो यही क्वेश्चन पूछा गया सी, सैटेलाइट का नाम दसो, तो इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम इसका सही आंसर है। ठीक है, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे, खूबसूरत क्वेश्चन है। और एक चीज़ तुसीं होर भी याद रखनी है, बेसिकली है ना कि इसरो ने एक तकरीबन जिसनों गगनयान दे विच भेजा जाना है, एक इदां दे ही वीमेन एक मैं रोबोट बनाया जिस नाल तुसीं हाल ही दे विच न्यूज़ भी देखा होएगा। ठीक है, और बेसिकली सेम अपने गल्लां बातां जवाब दे रहे ने वो। ठीक है, और इसरो ने जो भेजना है गगनयान दे विच जिन्ने भी 4 साइंटिस्ट ने वो ऑलरेडी बाहर यानी रशिया तो या अमेरिका तो मैं गल करांगा। ठीक है, नासा वगैरह तो ऑलरेडी ट्रेनिंग यदि लै रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर की होएगा, याद रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ GOI ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਂਚ ਨਿਊ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਡੇਟਾ ਰਿਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਗਨਯਾਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ 2022 ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोनॉमिक offence in 2018 as per the National Crime Board Bureau report। मैक्सिमम नंबर की गल हो रही है इत्थे क्राइम बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो यदा सही आंसर की होएगा नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2018 के विच। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द इकोनॉमिक ऑफेंस की गल हो रही है, तो यदा सही आंसर होएगा उत्तर प्रदेश। तुहानूं पता है कि उत्तर प्रदेश के आबादी बहुत है। स्टेट वाइज गल करते हैं, एरिया वाइज गल करते हैं तो राजस्थान सब तो वड्डा स्टेट सूबा है, लेकिन पॉपूलेशन की गल करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा पॉपूलेशन हैगी है। ठीक है, बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी तुहानूं पता होना चाहिए है। इत्थों के CM कौन है, इत्थों के गवर्नर कौन है, तुसी कमेंट में यदि जानकारी जरूर दे सकते हो, और ये भी याद रखना है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की गल करते हैं। खास तौर पर याद रखना है कुछ चीज़ां थोड़े तो एडिशनल इत्थे पूछियां जा सकदियां। पर जे आप गल करते हैं इत्थे बल्कि अकाउंटेड किया गया फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोनॉमी ऑफेंस 2018 विद 22,822 केसेस रिकॉर्डेड किए गए हैं। ठीक है, 22,822 केसेस हैं, और राजस्थान के किन्ने 21,309 केस, और महाराष्ट्र के 14,854 केस है। तेलंगाना का नंबर नैक्सट आता 10,390 केस है, फिर बिहार के आता है। ठीक है, इन्हों की यह रैंक भी तुहाडे तो पूछी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें आप। नैक्सट क्वेश्चन की है, विच सिटी रैंकड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ फास्टेस्ट ग्रोविंग अर्बन रीजन, फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड एज पर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है। इत्थे इन्होंने पूछा है कि विच सिटी रैंकड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ फास्टेस्ट ग्रोविंग अर्बन रीजन है। तो याद रखना है इत्थों बेसिकली जिन्ने भी सानू क्वेश्चन दिते गए हैं, इन्हां चों जो सही बेस्ट क्वेश्चन होएगा वो होएगा। ठीक है, मालापुरम कित्थे है, केरला विखे है, और इन इंडिया। ठीक है, ये भी याद तुसी रखोगे। कुछ चीज़ां इत्थों तुहानूं सीक्वेंस वाइज पूछियां जा सकदियां। जो भी रिपोर्ट जारी की गई है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EAU द्वारा एज पर द मतलब सारे वर्ल्ड दी सिटीज़ के मुताबिक फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटी की गल हो रही है।
तो मालापुरम केरला है इंडिया दे विच। और दूसरा भी याद रखना है, दूसरा भी केरला का, देखो इंडिया की बहुत अच्छी पोजीशन है। नैक्सट सिटी का नाम आता है कोझीकोड, ठीक है, यदा याद रखना है कि कोझीकोड, ठीक है, एक कोड तुसीं याद रखना है। कोझीकोड नंबर 2 ते केरला दे विच है। और तीजा फिर आता है तुहाडे कोले कोलम, ठीक है, कोलम भी केरला दे विच है। और उस तो बाद आता है कैंथो, ये उस तो बाद आता है कैंथो जो कि वियतनाम दे विच है। और फिर आता अपने कोले सिक्योन जो कि चाइना दे विच है। चलिए भाई नैक्सट क्वेश्चन देख लेने आपां। अगले क्वेश्चन की की जानकारी अपने को सिंपल जा क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द हैनले एंड पार्टनर्स। हैनले और पार्टनर्स के मुताबिक इतने रैंक पूछी गई है भारत की, तो बहुत ही मैं कहूँगा कि 84th है। चंगा नंबर है या मंदा नंबर है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। यू हैव टू मैंशन इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर गेटिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने, अगर तुहानू समझ आ पा रहा तो प्लीज़ सैशन को लाइक और शेयर कर दियो ताकि सारे स्टूडेंट्स तक इसकी जानकारी प्रॉपरली पहुँच जाए। चलिए तकरीबन 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक हैनले और पार्टनर्स ने इस चीज़ को जारी किया है कि इंडिया की पासपोर्ट रैंक है 84th स्पोर्ट अमंग द वर्ल्ड अमंग पावरफुल पासपोर्ट की गल करते हैं तो लगभग इंडिया की 84वीं रैंक हैगी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की गल करते हैं, सब तो पावरफुल की गल करते हैं तो जापान का नंबर 1 हैगा। नैक्सट क्वेश्चन है नेम द ऐप लॉन्च बाय द HDFC बैंक रिसेंटली टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। HDFC बैंक ने हाल ही के एक ऐप रिलीज़ की है तकरीबन उन्होंने डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करने वास्ते, तो यदा नाम की रखा गया माई एप्स, की रखा गया माई एप्स, ये भी तुसीं याद रखना है। और एक चीज़ तुसीं होर भी याद रखना है दोस्तों, एग्जाम के तुक्का मारना हो कभी भी अगर किसी भी बैंक के संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो मैक्सीमम HDFC ICICI बैंक, ठीक है, और बड़ौदा बैंक, इन्हों ही कुछ ना कुछ नवा होंदा है क्योंकि प्राइवेट्स बैंक है ना इंडिया के, खास तौर पर गल करिए तो यह कुछ ना कुछ नवा यही लैके आते तादी उसनों गवर्नमेंट बैंक फॉलो करते हैं, ठीक है। जितों तक गल करते हैं कि माई एप्स यानी मैं कहूँगा कि मेक द बिजनेस मोर कन्वेंट, बल्कि कन्वेंस बनाने वास्ते कस्टमर्स को HDFC यानी हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक है इसने जारी किया है, ठीक है। लगभग यह ऐप हैगी 20 भाषा के काम करेगी, तुसीं पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो थ्रू ऐप दे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो बना रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ऑफ इंडिया इन द ईयर फिस्कल ईयर 20 एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पैक्टस स्लो द ग्रोथ पॉलिसी चैलेंज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल जा क्वेश्चन और 5% तुसीं याद रखना। और इस तो पहला भी 5% बारे मैं थोड़ा ऑलरेडी डिस्कस दे चुके हैं ये बारे। चलिए नेम द इंडियन फर्स्ट, नैक्सट क्वेश्चन तुहाडे तो पूछा जा रहा है। चलिए इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरीज दैट इज लाइकली टू बी कमीशन बाई ईयरली 2021, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होएगा विक्रांत, बिल्कुल नॉट ए विक्रम, विक्रांत बिल्कुल सही आंसर होएगा। यानी नेम द इंडियन फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट, यानी इंडिजियस फर्स्ट पहला भारतीय एयरक्राफ्ट केड़ा है कि जो कैरीज दैट इज लाइकली टू बी कमीशन बाई अर्ली 2021, तो यदा नाम की है विक्रांत होएगा, ठीक है। याद रखना विक्रांत होएगा। ये पेपर दे विच हालांकि यह हाल ही दे बैंक पेपर च भी पूछा गया सीगा, तुसीं ये भी याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल जा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बाय द वे ये हाईलाइटेड क्वेश्चन जिन्ने भी होंगे करंट अफेयर दे विच जरूरी याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रिज दैट विल बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, यानी उस ब्रिज का नाम दसना है कि जोड़ा बनन जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर हाइट अबव द रिवर बेड, यानी नदी के उपर इन्ना उच्चा बनन जा रहा है रेलवे ब्रिज की गल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर किहड़ा होएगा, तो यह होएगा तुहाडा चेनाब ब्रिज, ठीक है। किहड़ा आ चेनाब ब्रिज होएगा। याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैट कर रहे न्यू डेडलाइन फॉर द, मतलब ये वास्ते कर रहे हैं कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होएगा 359 मीटर चेनाब होएगा। ये बेसिकली गल करते हैं कि कित्थों तो कित्थों तक होगा। कश्मीर विल बी कनैक्टेड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड इंडियंस रेलवे बाय द दिसंबर 2021 तक होएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े तो यह पूछा जा सकता है। बाय द वे बाईपेन रिवर के उपर है ना जो कि आप सुबाई रेलवे कहने 275 हैगा चाइना दे विच है और ये होएगा लगभग 360 मन के चलो तुसी और 35 मीटर टॉलर होएगा। ये भी तुसी याद रखना है, एग्जाम च पूछा जा सकता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। कश्मीर नूं जोड़न वास्ते अन्य स्टेशनस और रेलवे दे नाल, ठीक है। नेम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम लॉन्च बाय द आंध्र प्रदेश AP चीफ मिनिस्टर CM
ठीक है, यदुगिरी, ठीक है, इन्हां दा नाम है संदिति जगमोहन रेड्डी। तो तुसीं इहनूं बस YS रेड्डी दे नाम ते याद रखना है, ठीक है, YS रेड्डी। एंड दैट प्रोवाइड्स लगभग 15,000 टू इंडिजेंट मदर्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, ठीक है, इन्होंने चिल्ड्रनस नूं। तो इहदा सही आंसर की होएगा, सिंपल जिहा क्वेश्चन है, फस्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम, पहली स्कीम लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਂध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का, YS जगमोहन रेड्डी, ठीक है, और प्रोवाइड करवा रहे हैं 15,000 इंडिजेंट मदर्स नू एजुकेट कराने वास्ते उन्होंने बच्चों नू। तो इसका नाम रखा गया है, ठीक है, याद रखना अम्मा वोदी, ठीक है, जे अम्मा वोदी, और जे का मतलब हुंदा आ जग्गा, याद रखना कि जग्गा नाना अम्मा वोदी, नॉट ए मोदी, ठीक है, वोदी VODI, याद रखोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें आप। नैक्सट क्वेश्चन की है, हु रिसीव द फस्ट, यानी पहला पूछा गया इन्होंने, देखो क्वेश्चन च पहली चीज़ हु रिसीव द फस्ट, जो भी फस्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू नैशनल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस ऑन January 9, 2020। तो इन्हों का नाम की है, इन्हों का नाम होएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर चौथा राइट होएगा। स्वामीनाथन कौन है? स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर मन्ने जाते हैं इन इंडिया, ठीक है, और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, बल्कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन इन्हों सिलेक्ट किया गया, पहले रिसिपेंट यानी प्राप्तकर्ता होंगे। मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू कौन ने? इस वक्त साडे देश के वाइस यानी डिप्टी प्रेजिडेंट ने। अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस हैज़ बीन अवार्डेड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के इन्हों के योगदान करके इन्हों दिता जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपन 17वां कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, केड़ा स्टेट है कैरेक्टराइज किया गया अचीवर यानी सैकेंड स्टेट होएगा एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019, यानी यहो जिहा केड़ा सूबा आ, यहो जिहा केड़ा स्टेट है लगभग यानी सैकेंड स्टेट होएगा। याद रखना है कि एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 के अंदर, ठीक है, अलोंग विद द हरियाणा एंड केरला। तो जो सही आंसर होएगा कर्नाटका दे विच कोई फर्जी नाटक नहीं होंगे है, रियली प्रोग्रेस है तो है, ठीक है, ये भी तुसी याद रखना है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां, नेम द फस्ट इंडियन नेम दसना पहले भारतीय दे इक्वेस्टेरियन हु क्वालीफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स आफ्टर सैकेंड डिकेड्स, यानी सीन्स मैं कहांगा कि इम्तियाज एसेंस 20 बल्कि 2000, ठीक है, 2000 तो बाद कि नहीं उन्होंने किया है। तो याद रखना है इन्हों का फुआद मिर्जा, याद रखोगे ऑप्शन नंबर 3 फुआद मिर्जा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होएगा। डबल एशियन गेम्स है, मेडलिस्ट है, ठीक है, इक्वेस्टेरियन फुआद मिर्जा बिकम द फस्ट इंडियन रीडर, ये फस्ट इंडियन हो चुके हैं कंप्लीट द 2020 समर ओलंपिक के टिकट इन्होंने मिल चुके हैं, जो कि बल्कि समर ओलंपिक है कितने ये जापान के होएगा, ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी असिस्टेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप द 5-year प्लान ऑफ फार्मूलेशन ऑफ नेशनल स्ट्रैटजी फॉर फाइनेंशियल इनक्लूशन, जिन्होंने आप NSFI कहने फॉर द पीरियड ऑफ 2019 तो लैके 2024 तक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये दसना है कि विच कमेटी किहड़ी कमेटी है जी असिस्ट कर रही ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 5-year प्लान के फॉर्मूला के बेस पर आप कहांगे उन्होंने स्ट्रैटजी और प्लैनिंग की है, जो फाइनेंशियल बल्कि इनक्लूशन फॉर द पीरियड ऑफ 5 साल का होएगा, 2019 तो लैके 24 तक का होएगा। तो फाइनेंशियल इनक्लूशन एडवाइजरी कमेटी, जो एडवाइजरी कमेटी है ना उसनों आप कहांगे, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर पहला होएगा, इस कमेटी को याद रखना है, फाइनेंशियल इनक्लूजन एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म च FIAC होंदा है, ठीक है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिहदा हैडक्वार्टर कित्थे मुंबई विखे है, और इन्हां दे थ्रू ये हो रहा है 5-year प्लान जो सीगा 5 सालों का प्लान है, फॉर्मूला बनाया गया नैशनल स्ट्रैटजी फाइनेंशियल इनक्लूजन का पीरियड 2019 तो लैके 24 तक होएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तुहानूं की पूछा जा रहा वा, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर B है, वट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिकॉरिंग द पेमेंट्स थ्रू द UPI, यानी UPI की फुल फॉर्म होंदी है यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, घट्टो घट्ट कितना दिता गया, तो 2000 रुपये इसका सही आंसर होएगा। और UPI के थ्रू पेमेंट करते हो तो कोई भी तुहानूं एक्स्ट्रा चार्जिस नहीं लगते हैं, ये भी तुसीं याद रखना है, ठीक है। चलिए
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਮ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਫॉर द ਵਰਲਡ ਗੇਮਸ ਐਥਲੀਟ ਆਫ द ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ 2019 ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ FIH ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ FIH ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਰਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ। ਰਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਵੀਮਨ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨੇ। ठीक है, जरा ये भी तुसी क्वेश्चन याद रखना है, पेपर के दरमियान थोनों इदां दी चीज़ां पूछियां जा सकदियां, सो दैट कि मैं थोनों सारियां चीज़ां ये दस रहा। इंडियन क्वालीफाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बैक टू बैक ओलंपिक गेम्स वास्ते हो चुकिया वा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विच सिटी विल होस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन सेक्टर द विंग्स इंडिया 2020 विद द थीम ऑफ फ्लाइंग फॉर ऑल। फ्लाइंग फॉर ऑल वास्ते है दोस्तों। दा सही आंसर की होएगा? ऑप्शन नंबर दूजा होएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूजा होएगा, तुसीं याद रखना है। बेगुमपेट एयरपोर्ट ऑफ हैदराबाद है। ठीक है, इन्हों याद रखना है। बेगुमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद तेलंगाना है। पेपर के संबंध च पूछा जा सकता है। विंग्स इंडिया 2020 इनू की रखा कि सिविल एविएशन सैक्टर, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थीम हैगी है द फ्लाइंग फॉर ऑल, फ्लाइंग फॉर ऑल। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देख लेने आप। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो सैशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दो यार, जो चंगा नहीं लगता डिसलाइक कर दो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट कैरीज लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट एंड तेजस हैज लैंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो INS विक्रमादित्य नाम याद रख लो, INS विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य। ठीक है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस हैज लैंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इन्होंने पूछा सीगा कि केड़ा ओह एयरक्राफ्ट है कैरीज करदा या, तो INS विक्रमादित्य नाम याद रखना है। ठीक है, पेपर के संबंध में पूछा जा सकता है। सक्सैसफुली लैंडेड होया इन इंडिया बिगेस्ट, मैं कहांगा कि वॉरशिप INS विक्रमादित्य, और मैडन लैंडिंग सीगी, मतलब मैडन कहते हैं फर्स्ट यानी पहली बार सीगी जो कंडक्टेड की गई सी कोयम्बटूर जयदीप मुलांकर द्वारा किया गया सीगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नैक्सट देख लेने आप। नैक्सट क्वेश्चन की जानकारी पूछी जा रही है अपने तो। नाम पूछा जा रहा है उस मिशन का जो लॉन्च किया गया श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इन कैलकटा वैस्ट बंगाल फॉर द नैक्सट क्वेश्चन तुहाडे तो पूछा जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया थ्रू द इंटीग्रेटेड स्टील हब। ठीक है, सब तो पहला क्वेश्चन आता है कि धर्मेंद्र बल्कि ये कौन ने, श्री धर्मेंद्र प्रधान कौन ने? धर्मेंद्र प्रधान कौन ने? बेसिकली मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस एंड स्टील। याद रखो, पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस स्टील के मिनिस्टर ने, और इन्होंने कैलकटा के विखे इनोग्रेट किया, बल्कि इंटीग्रेटेड किया गया इन्हों द्वारा। और बेसिकली इस क्वेश्चन को एक्सेलरेटेड करने की डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया थ्रू द इंटीग्रेटेड स्टील हब इन कैलकटा विच करने की इन्होंने स्कीम रखी है। और इस बेसिकली स्कीम का नाम रखा इन्होंने पूर्वोध्या। की नाम रखा वा? पूर्वोध्या। याद रखना है किहड़ी स्कीम है? पूर्वोध्या। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देख लेने आप। क्वेश्चन नंबर साढ़े को 25वां, नेम द स्कीम लॉन्च बाई द यूनियन मिनिस्टर फॉर वीमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टैक्सटाइल समृति जुबिन ईरानी द्वारा वीमन इंटरप्रेन्योरशिप इन गोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब तो पहला सवाल खड़ा होंदा है, सवाल ये बनता है कि स्मृति ईरानी ने यह किहड़े मिनिस्टर ने? तो वीमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर ने, बल्कि वीमन वास्ते आवाज़ वूज कुछ नहीं चुकते, इन्होंने सिर्फ आपका एजेंडा रखना जो पार्टी का है। ठीक है, हाँ ये भी जरूरी है, ये तुहानूं हर चीज़ एक्चुअल दे जानना जरूरी है दोस्तों। बहरहाल बहुत बार असीं कई बार सोचते हैं, खास तौर पर देहाती क्षेत्रों च जनरली आपां कहने हैं, बाहर की गल हुंदी है फॉरन की, उत्थे रूल ते रेगूलेशन क्यों मन्ने जाते हैं? बिकॉज कि उत्थे रूल नूं फॉलो किया जाता है, और इत्थे सिर्फ पार्टी नूं फॉलो किया जाता है। दैट इज़ सिंपल, क्योंकि किसी भी तरीके का बंदा आ उहदी छवि किदां दी है, अगर वो समबड़ी इस मतलब हैल्प कर रहे फॉर द पार्टी, ठीक है, तो उहदे वास्ते वो खड़नगे एंड सपोर्ट करनगे, ना कि किसी रूल वास्ते, और बल्कि रूल जस्टिफाई देने वास्ते खड़े होणगे। ठीक है, इदां दा बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट इदां दी गल नहीं है, दे शुड अडॉप्ट इट, इन्हां नूं मनना चाहिए कि तद कि बल्कि रूल्स अगर है तो डेफिनेटली सारे ही इस चीज़ नूं फॉलो करनगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच यही पूछा गया सीगा कि स्कीम जो लॉन्च की गई है उसका नाम दसना, तो तुसीं दसना है यशस्विनी स्कीम। यशस्विनी स्कीम है, यानी यूनियन मिनिस्टर फॉर द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टेक्सटाइल जो स्मृति जो ईरानी है, इन्होंने यशस्वी मिनी स्कीम लॉन्च की है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम
ਤਿਆਲ ਗੋਆ ਟਾਊਨ ਨੀਅਰ ਪਣਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਸਥਿਆ ਸਖੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ ਫॉर ਦਾ ਓਕੇਜਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਟਡ ਦਾ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਪੀਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ 2020, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना इसका की आंसर होएगा, ईरान बिल्कुल राइट आंसर है, ईरान बिल्कुल राइट आंसर है। यानी 23rd दो पर्शियन गोल्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैल्ड इन तेहरान हुई सी, और तेहरान की है तुसी दसना ईरान दी बल्कि कैपिटल है, और विखे ड्यूरिंग द फॉर्मन इंडियन सपोर्टेड द मैं फॉर्मूज पीस इनिशिएटिव 2020 भी सपोर्टेड की गई सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने हैं। 27 नंबर है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कैलकाटा पोर्ट दैट वाज रीनेम्ड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कुछ क्वेश्चंस दी अगर ड्यूरिंग डबिंग या ड्यूरिंग यह आवाज़ ना आवे तो सो दैट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ इनू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए इसको बेसिकली सिंपल जी क्वेश्चन का जो सही आंसर होएगा वो की आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर होएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। पेपर के संबंध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी तुसीं याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ए 2 days ऑफिशियल विजिट टू कैलकाटा वेस्ट बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, और उन्होंने रीनेम किया है कैलकाटा पोर्ट द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ओकेजन ऑफ बेसिकली किया 150वीं इन्हां दी की होएगी एनिवर्सरी के तौर पर। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है, नेम द इंडियाज फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट इनोग्रेटेड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह टू हैल्प द साइबर क्राइम विक्टिम्स। तो इसका सही आंसर की होएगा, सब तो अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ठीक है, आश्वस्त इसका बिल्कुल सही आंसर होएगा, आश्वस्त। और आश्वस्त की पूरी फॉर्म की बनती है, ठीक है, एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पिंग फॉर विक्टिम फॉर एट शॉर्टेस्ट टाइम। तब सिंपल जा क्वेश्चन इहदा हैगा, और सिंपल जा आंसर याद रखना है। और यह फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन होया है, और यह किहदे द्वारा किया गया, अमित शाह द्वारा किया गया, और अमित शाह इस टाइम देश के कौन ने, होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें आप, क्वेश्चन नंबर 29वां, विच बैंक वॉज सर्व्ड फ्रॉम डूइंग द बिजनेस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर फाइंडिंग द alleged irregularities in transaction and its depositors withdraw was limited 35,000 रुपए। तो यह हैगा सही आंसर, गुरु याद रखना है, श्री गुरु राघवेंद्रा याद रखना है, राघवेंद्रा बैंक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और याद रखोगे, सिंपल जा क्वेश्चन है। और यहो जे क्वेश्चन जो अमूमन साडी टच च नहीं है वो हो सकते हैं। इन्होंने पूछा सी किहड़ा बैंक है बिजनेस परपज जो RBI ने आफ्टर द फाइंडिंग यानी इरेगुलरिटीज एंड ट्रांजैक्शन के तहत उन्होंने की किया वा, मतलब बेसिकली इट्स डिपोजिटेड विड्रो वाज द लिमिटेड। ठीक है, तो कितनी लिमिटेड सीगी, तो दोस्तों इहदा सीगा श्री गुरु राघवेंद्रा बैंक, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की है, अगला क्वेश्चन है 14वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर माल्टा के कौन जिते ने, कौन विनर हुए ने, तो इन्हों का सही आंसर की हो सकता है। थोनों बेसिकली फिर इतों 5 ऑप्शन दिते गए हैं, तो रॉबर्ट अबेला याद रखना है, रॉबर्ट अबेला। ठीक है, रॉबर्ट अबेला। ठीक है, तो तुसीं इहनूं याद रखना है कि बेले बैठे माल्टे खाई जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप को कहते हैं कि असी देश के कौन ने प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए ये भी तुहाडे लई ईजी होएगा याद रखना। जो कंसैप्ट के तौर पर गल करिए तो सिंपल जा होएगा, बल्कि 14वां प्राइम मिनिस्टर है माल्टा दी भी तुहानूं याद रखना होएगा। ठीक है, रिप्लेस किया इन्होंने जोसेफ मस्कट नूं रिप्लेस किया, और इन्हां दी अबेला साहब की 42 साल की उम्र है, बल्कि पेशे तो एक लॉयर सीगे। लेबर पार्टी लीडरशिप तो यह जिते ने, लगभग 58% समथिंग इन्होंने वोटां मिलियां। चलिए नैक्सट क्वेश्चन आप देख लें। अगले क्वेश्चन च साडे तो की पूछा जा रहा है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू रूलर ऑफ द ओमान आफ्टर द डिमाइस ऑफ सुल्तान, यानी मैं कहूँगा कि क्यूबूस बिन शैद अल सैड जनवरी 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है। तो दोस्तों ਇਹਦਾ सही आंसर होएगा हेथम बिन तारिक अल सैड, तो ये भी तुसीं याद रखना होएगा। ठीक है, हेथम याद रखना, हेथम बिन तारिक। तो हेथम बिन तारिक है, इन्हां नूं न्यू रूलर अपॉइंट किया गया किन्हां दा, ओमान दा। ठीक है, ओमान जिन्होंने आप कहने ओमान कंट्री है, ये भी तुहानूं याद रखना होएगा। इन्हां दी उम्र 66 साल उम्र हैगी, अपॉइंट किया गया न्यू रूलर इन्हां नूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव द, नैक्सट क्वेश्चन हैगा
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने। हु रिसीव द प्रेस्टिजियस पॉली अमरिगर अवार्ड ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर 2018-19 इन द मेंस कैटेगरी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया BCCI कहने एनुअली अवार्ड फॉर द ईयर 2018-19। तो जसप्रीत बुमराह बिल्कुल जस्सी जिहदा नाम है और इंडिया के फास्ट बॉलर है, याद रखना है। और अज बल्कि न्यूजीलैंड के नाल सैकेंड T20 मैच हो रहा है और इंडिया मैं कहना 100 50-50 चांस है। बट बाय द वे अगर इंडिया जित जाता है तो इंडिया इत्थे यानी बहुत ही मैं कहांगा कि T20 सीरीज़ नूं जितण वाली बल्कि पहली पोजीशन ते पहुंचेगा। वेयर वॉज द 2 इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स जिन्हों ICGS कहने हैं एनी बेसेंट एंड अमृत कौर कमीशन रिसेंटली। तो दोस्तों का सही आंसर होएगा कैलकाटा वेस्ट बंगाल होएगा। कैलकाटा वेस्ट बंगाल बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स है और ये है कि नेमली एनी बेसेंट एंड अमृत कौर इन्हों का नाम दिता गया। सैकेंड एंड थर्ड टू द सीरीज ऑफ 5 फास्ट पेट्रोल वेजल के तौर पर वर कमीशन बाय द डिप्लॉयड अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट बाय द डिफेंस सैक्रटरी अजय कुमार, ठीक है। ये भी तुसीं याद रखना है। और एडिशनल फैक्ट थोड़ा प्रोपरली सारे पढ़न को मिलणगे बट बाय द वे जिन्ने भी मैं क्वेश्चन करावांगा बल्कि हिट एंड फिट पूरे तौर पर क्वेश्चन ने। नेम दसना उस इंस्टीट्यूट का जिन्हें डिवेलप किया IT मतलब कि इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी टूल इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, ठीक है। और हेल्प करेगा प्रॉपरली मॉनिटरिंग करेगा एक्यूरेट करेगा ताकि रोड एक्सीडेंट ना हो, घटना ना वापरन। तो दोस्तों इत्थे सही आंसर की होएगा ऑप्शन नंबर चौथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी मद्रास ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल ठीक ठाक होएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक गल मेरे दिमाग 'ਚ हमेशा आउंदी है, साडे भारत देश दे विच ना सारे हथियार बैन हो जाने चाहिए, किसी कोले हथियार नहीं होने चाहिए। तुहानूं बड़ा याद होएगा कि ये चीज़ पिछले साल एक न्यूजीलैंड दे विच वापरी सीगी लाइव फेसबुक ते होके। और बल्कि न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है आस्ट्रेलिया की एक साइड ते बसिया होया छोटा जिहा मैं कहांगा कि कंट्री हैगी है और अटैक होया सीगा। उस तो बाद उत्थों के प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंस किया सीगा कि हथियार बैन किए जाएंगे बट उन्होंने फिर भी 6 महीने का टाइम दिता और उन्होंने कॉस्ट पाती है। इदा ही इन इंडिया हो जाना चाहिए। अगर किसी की एनी ही जान को खतरा तो हथियार किसी की जान नहीं बचा सकते। अगर इफ एनीबडी मतलब किसी को डर है किसी तो ही एंड शी शुड गो टू द पुलिस ना, उन्होंने जाना चाहिए। अगर ये चीज़ां होणगियां तो अमूमन सानू अखबारों के जो पन्ने है ना नुक्करां ने चुंडा है उन्होंने तो सानू खबरां नहीं मिलनों देखण नूं नहीं मिलणगियां फलाणे ने फलाणे नूं गोली मार के मारता, ठीक है। इदां दी चीज़ां बहुत वारदातां होंदियां सो दैट ये चीज़ां डेफिनेटली बैन हो जानियां चाहिए। जिमें कि अजकल कोई तिरंगे का या कोई देश के प्रति माड़ा या लफ्ज़ या शब्द बोलता हत्थों हत्थ देशद्रोह का केस उस पर लग जाता। इदां ही इस चीज़ पर भी होना चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ है मैनू कमेंट करके जरूर दस्यो। अगर आप सोचते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर ये चीज़ां काम बल्कि सच भी हो जान बट बाय द वे जो भी है तुहाडे सामने है। सो दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी मद्रास द्वारा यह जारी किया गया है। दसना चाहांगा कि इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मिनिस्टर है उन्होंने नाम की है नितिन गडकरी है और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने जॉइंटली लॉन्च किया IT इन्फॉर्मेशन जो भी इन्हों द्वारा जो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस तैयार किया गया उसनों और ये लॉन्च किया गया वा। याद रखना है ये डिवेलप किया गया सीगा इंडियन इंस्टीट्यूट टैक्नोलॉजी मद्रास द्वारा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने आप। क्वेश्चन नंबर अज की सीरीज का 35वां। हु वॉज अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी डिप्टी गवर्नर यानी 4 डिप्टी गवर्नर होंगे ने RBI के उन्होंने लॉन्च किया बल्कि अपॉइंट किया गया है। तो याद रखना है कि माइकल, ठीक है, माइकल देबात्रा पात्रा माइकल डेबा बराटा पात्रा तुसीं याद रखना है। माइकल डेबा बराटा पात्रा साहब जी की बनाता है डिप्टी गवर्नर बनाता वा, ठीक है। हो सकता है कि नैक्सट गवर्नर भी बन सकते हैं अगर गवर्नमेंट नाल अच्छा इन्हां दा लाइसेंस चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है नेम द फस्ट वीमन परेड एडजेसेंट फॉर द रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को परेड फॉर द 2020 आर्मी डे 15 जनवरी को होंगे। बेसिकली क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि आर्मी डे कदों होंगे 15 जनवरी को होंगे और रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को होंगे। तो बेसिकली वीमेन परेड वास्ते किहदा नाम है तो तानिया शेरगिल जी का नाम तुहानूं याद होएगा। अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैप्टन ने तानिया शेरगिल जी, ऑफिसर ने आर्मी स्क्रॉप दे विच सिग्नल बल्कि सिंगल, ठीक है। विल बी द फस्ट वीमेन परेड हुई है जॉइंटली कि रिपब्लिक डे ते किया गया इन्होंने द्वारा। बहुत ही अच्छा लगे और इदा हमेशा वीमेन नूं अगे आना चाहिए और पावर मिलनी चाहिए है चाहे किसी भी क्षेत्र च क्यों ना हो। नैक्सट क्वेश्चन है 37वां। नेम द इंडियन स्पोर्ट्स प्लेयर जिन्होंने हाल ही के ऑनर्ड किया गया विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सैकेंड एडिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2020। तो यदा सही आंसर की होएगा
कपिल याद रखना है, देव रामलाल, ठीक है। तो बेसिकली आप कपिल देव जी कह दें, तो इसका सही आंसर होएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल जहा क्वेश्चन है, पेपर के संबंध च इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर इंडियन प्लेयर है। स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर, देखो मैं थोड़ा नाम दस देना है, स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर, ठीक है। फिर स्पैशल रिकगनाइज अवार्ड हो गया, तो लिएंडर पेस नूं दिता गया, टेनिस दे विचों है। और बेस्ट स्टेट ऑफ द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स उड़ीसा रहा, सैकेंड टाइम रहा हो। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर इंडिविजुअल की गल करते हैं तो बजरंग पूनिया ये एक रैसलिंग करते हैं, ठीक है। तो इदा काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है, जो मैं थोड़ा इदा कराँगा, इस बेसिकली पूरी लिस्ट थोड़ा इतने अवेलेबल मिलेगी, ये तुम पढ़ सकते हो। देखो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की गल है तो बजरंग पूनिया है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की गल करते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट की गल करते हैं तो ठीक है, कनेरू हंपी हो गया, चेस के विच ने ये। इस तो बाद हो गया कि स्पैशल जूरी अवार्ड हो गया, पंकज अडवाणी बिलियर्ड एंड जो स्नूकर प्लेयर ने उन्हों की गल हो रही है। पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग कोऑपरेटिव हाइस फॉर द प्रमोशन स्पोर्ट्स वास्ते इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया। तो तुहानूं लिस्ट पूरी मिल जाएगी, जो तुहानूं स्टडी करने वास्ते मच बैटर रहेगी। नेक्स्ट हो गया स्टैचू ऑफ यूनिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 8th वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट। तो ये लोकेटेड इन विच कंट्री, किहड़ी कंट्री विच लोकेटेड है, तो तुहानूं पता है कि इंडिया दे विच हैगा आ, ठीक है, जिथे काफ़ी पैसा लग्या सी, यू नो, ठीक है। ये बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहांगा, बट यू नो वेरी वैल। लगभग इसकी उचाई की गल करते हैं तो 597 फिट हैगा आ, तकरीबन मैं कह सकता कि 182 मीटर है, ठीक है। सिंपल जहा क्वेश्चन तुहाडे लई आसान होएगा, जो याद रखना होएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने आप। विच 2 कंट्रीज विल पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग, ठीक है, सहयोग केजिन, सहयोग केजिन के नाम से याद रखना तुसीं दोस्तों। इनू याद रखना आप कि सहयोग सानू टैक्नोलॉजी च सब तो ज़्यादा जापान कर रहे हैं, तो आप जापान का नाम इंडिया नाल जोड़ दिंदे हैं, इस करके सहयोग केजिन, ठीक है, सहयोग केजिन के नाम तो याद रखना है। और एनुअली जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है किहड़ियां 2 कंट्रीज दे विच, इंडिया एंड जापान दे विच हो रही हैं, ठीक है। अच्छा होएगा कि क्वेश्चनस नूं तुसीं मेरे नाल चीज़ां याद करते चलो, तुहाडे लई आसान होएगा दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जे खास तौर पर तुसीं सोच रहे हो भी किसी भी एग्जाम तो पहलां असीं पढ़ लांगे, तो तुहाडी बहुत वड्डी भुल होएगी, गलती हुंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ डेवलप्ड a special class diesel and high flash high speed diesel confirming the NATO मतलब आप नॉर्थन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड फॉर यूज इन द शिप एंड वेजल फॉर द इंडियन आर्मी। और यदा होएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है स्पैशल क्लास डीजल, जिन्होंने आप स्पैशल नाम दिता गया कि FHFSD, ठीक है, डैश IN 512, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल जहा क्वेश्चन है, आई थिंक थोड़ा बहुत हेल्प होएगी इस क्वेश्चन तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल एंटी ड्रोपिंग एजेंसी। देखो एंटी जो नेशनल डोपिंग है एजेंसी है, उन्होंने दे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन ने, तो इन्होंने नाम याद रखना है, नवीन अग्रवाल बिल्कुल राइट आंसर होएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 नवीन अग्रवाल जी याद रखना तुसीं, ठीक है। तो नवीन नूं की चाहिए, नवीं चीज़ां चाहिए, कोई भी डॉप नहीं होना चाहिए, सो दैट नवीन अग्रवाल नूं तुहाडे लई आसान होएगा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बल्कि एंड विच तुहानूं मैं खास तौर पर जिहड़ियां कि हाईलाइटेड फैक्ट होंदे उन्हां ते आपां चर्चा करते हैं। हॉर्नबिल फैसटीवल होया सीगा, ये किहड़े बल्कि स्टेट ने होस्ट किया है, किहड़े स्टेट दे विच एसोसीएटेड किया गया वा, तो नागालैंड, ठीक है। हॉर्न है ना, ये इत्थे ज़्यादातर अलाउ नहीं है, तो नागालैंड दे विच लोग बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, ठीक है। सो दैट तुहाडे लई आसान होएगा याद रखना। हुण तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे कि नागालैंड दे कौन है CM कौन है, और इत्थों दे गवर्नर कौन है, ठीक है, और इत्थों दी की है कैपिटल की है, ये तुसीं तीन मैनूं ऑप्शन से कमेंट बॉक्स जरूर दोगे। नैक्सट क्वेश्चन दस दें मैं तुहानूं, मिसमी ट्राइब इज एसोसीएटेड विद विच स्टेट, किहड़े स्टेट के संबंध च है मिसमी ट्राइब। दोस्तों याद रखना है मिसमी, तो मिसमी ये है आंध्र प्रदेश के लोग माफ़ करना जरा यार, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश, आई एम रियली सॉरी, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश मिसमी ट्राइब एसोसिएटेड विद विच स्टेट तो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कोले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ ऑफ द नवल स्टाफ ऑफ इंडिया। तो नवल स्टाफ ऑफ इंडिया के चीफ कौन ने, तो करमबीर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। करमबीर सिंह इज़ द करेक्ट ऑप्शन, विल बी राइट आंसर। सो दैट प्लीज़ गाइस, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ बीजू फॉर भुवनेश्वर उड़ीसा, ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾਇਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਟਨਾਇਕ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ बीजू ਪਟਨਾਇਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਰਿਸੀਵ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ recognition for the reducing the carbon emission along with the 3 other airport, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया, लाल बहादुर शास्त्री हो गया, सो दैट, ठीक है। तो ये भी तुसी याद रखना है, सिंपल जा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ नहीं है बल्कि इत्थे इंश्योरेंस है, याद रखना है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो सुभाष चंद्र याद रखना है तुसी, सुभाष चंद्र खूंटिया इज़ द राइट आंसर है, सुभाष चंद्र खूंटिया बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ये कौन ने? चेयरमैन ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हैडकुआटर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हैडकुआटर कित्थे है? तो यह हैगा वा पेरिस, फ्रांस दे विच है। तो तुसीं याद रखना है, फ्रांस के लोग है ना जो, ठीक है, पेरिस के लोग खास तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी होंगी है, सो दैट आप याद रखांगे कि एनर्जी पेरिस बहुत ज़्यादा लोगों के है, फ्रांस के है। तो आप याद रखांगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हैडकुआटर कित्थे है? तो वो पेरिस फ्रांस के है, ठीक है। हुण तुसीं मैनूं दसोगे कि ये प्रेजिडेंट कौन है, ये चेयरमैन या प्रेजिडेंट कौन है? कमेंट करके जरूर दसो यार। अगला क्वेश्चन है अज की सीरीज़ का, नैक्सट क्वेश्चन करते हैं आप। नैक्सट हो गया कि हावड़ा ब्रिज रविंदर सेतू जिन्होंने आप कहने इज न्यूज रिसेंटली इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, न्यूज़ दे विच सीगा ये, ठीक है। तो किहड़े स्टेट दे विच है? बेसिकली ये तुहाडे तो पूछा गया वा, ठीक है। इहदी न्यूज़ क्यों सी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है साउंड एंड लाइट शो एट द आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज इंस्टॉल एट ए मिलिमन पार्क इन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। याद रखना 2.5 मिनट शो द प्रोजेक्ट ऑफ कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट 150वीं एनिवर्सरी सैलीब्रेशन की गई, सो दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो यदा जो सही आंसर होएगा वेस्ट बंगाल हावड़ा ब्रिज, सबनों पता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सैकेंड लास्ट आज की सीरीज क्वेश्चन होएगा है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड केड़ी कित्थे है? कोरिंगा, ठीक है। कोरिंगा देखो गुजरात दे विच नहीं है, असम दे विच नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, तो की बचा तुहाडे कोले? आंध्र प्रदेश, ठीक है। हाँ जी, तो आंध्र प्रदेश के लोग अन्ने ने, इस करके कहते हैं कि सारे इत्थे की ने, बल्कि रंगा वाइल्ड लाइफ है, सारे ही रंगा वाइल्ड लाइफ है, सो दैट कि तुसी रंगा तो कोरिंगा याद रख सकते हो, तुहाडे लिए आसान होएगा, ठीक है। खास तौर पर कुछ चीज़ां इंपॉर्टेंट ने। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी हैगी है ये आंध्र प्रदेश के विच है, और ये भी न्यूज़ के विच सीगी, क्योंकि एनुअली बर्ड जो सेंसस है ना, इत्थों की किया गया वा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विचों स्टार्ट किए गए, सो दैट इंपॉर्टेंट हो जाता वा तुहाडे लई। क्वेश्चनस नूं याद रखना जो न्यूज़ दे विच डेफिनेटली तुहानूं पूछा जाएगा। और अज की सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन हैगा वा कि ताल वोल्कनो दैट है इरुप्ट द रिसेंटली इन लोकेटेड इन विच कंट्री, तो किहड़ी कंट्री तो फिलीपींस बिल्कुल राइट आंसर होएगा, फिलीपींस बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर दे रहे हैं, सो दैट कि आपां याद रखना ईजी होएगा। तो फिलीपींस की गल करते हैं तो मनीला इत्थों की की है, इत्थों की मनीला इत्थों की हैगी है कैपीटल, याद रखना फिलीपींस की। तो गाइस अज दे बेस्ट 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मैं पहला करवा चुके हैं, सो कि अपने 100 हो चुके हैं। और नैक्सट तुहाडे तक सीरीज असीं 1-2 दिनों च लैके आवांगे, तद तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय। चंगा लग्या तो लाइक और शेयर करना नहीं भुलना।